Hello everyone, welcome to Legal Update, and today's topic for discussion is surrogacy age limits and retrospective application. Why news? Recently, the Supreme Court in Arun Mutawal versus Union of India held that the age limits under the Surrogacy Regulation Act 2021 do not apply retrospectively, and couples who began the surrogacy process before the act came into force may continue even if they exceed the statutory age limits. Background of the case: the Surrogacy Regulation Act 2021 set age limits for intending parents, women as 23 to 50 years and men from 26 to 55 years, and restricted surrogacy to adulteristic cases only. Several couples had frozen embryos before the act came into force but exceeded the new age limits. Petitioner challenged whether the new age restrictions could retrospectively apply to them. The Supreme Court examined whether the surrogacy process already commenced, focusing on gamete extraction and embryo freezing, which had been completed before the act. What were the court observations? Justices B.V. Nagaratna and K.V. Viswanathan held that the commencement of surrogacy extraction of gametes and freezing of embryos locks in the rights of intending parents. Age limits under the act do not affect them retrospectively. To curb commercial surrogacy, not to prevent genuine couples from exercising reproductive autonomy. While gamete quality and age may be relevant, they do not justify retrospective enforcement, especially when natural conception or adoption has no similar age bar. Couples who started surrogacy before the act can continue despite age limits. Provisions involved are: first, Surrogacy Regulation Act 2021, which sets age limits for intending parents, bans commercial surrogacy, permits only adulteristic surrogacy. Second, Surrogacy Regulation Rules 2022, which governs registration of clinics, staff qualifications, insurance coverage, consent forms, and limits on surrogacy attempts. Third, Assisted Reproductive Technology Regulation Act 2021, which regulates ART clinics, supervision, and safe ethical practices. It's the time for practice question. Which statement is correct regarding age limits and surrogacy? Option A: couples exceeding age limits cannot continue surrogacy if embryos were frozen before the act. Option B: age limits under the Surrogacy Regulation Act 2021 do not apply retrospectively. Option C: surrogacy cannot proceed without ART board approval in all cases. And option D: couples must restart the surrogacy process under the new act. सरोगेसी आयु सीमा और पूर्वव्यापी आवेदन। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में अरुण मुथुवेल बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत आयु सीमाएं पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होती हैं और जिन दंपतियों ने अधिनियम के लागू होने से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी वे वैधानिक आयु सीमा पार करने के बाद भी इसे जारी रख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इस मामले की पृष्ठभूमि के बारे में। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 ने इच्छुक माता पिता के लिए आयु सीमा निर्धारित की। महिलाओं के लिए 23 से 50 वर्ष, पुरुषों के लिए 26 से 55 वर्ष और सरोगेसी को केवल परोपकारी मामलों तक सीमित कर दिया। कई दंपतियों ने अधिनियम के लागू होने 25 जनवरी 2022 से पहले भ्रूण को फ्रीज करवा लिया था, लेकिन नई आयु सीमा पार कर चुके थे। याचिकाकर्ता ने चुनौती दी कि क्या नई आयु प्रतिबंध पूर्वव्यापी रूप से उन पर लागू हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की जांच की कि क्या सरोगेसी प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है जिसमें युग्मक निष्कर्षण और भ्रूण को फ्रीज करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जो अधिनियम से पहले पूरा हो चुका था। चलिए अब जानते हैं इस मामले में न्यायालय की टिप्पणियों के बारे में। न्यायमूर्ति B.V. नागरत्ना और न्यायमूर्ति K.V. विश्वनाथन ने कहा कि सरोगेसी युग्मकों का निष्कर्षण और भ्रूण को फ्रीज करना की शुरुआत से इच्छुक माता पिता के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। अधिनियम के तहत आयु सीमाएं उन्हें पूर्वव्यापी रूप से प्रभावित नहीं करती हैं। व्यावसायिक सरोगेसी पर अंकुश लगाने के लिए, न कि वास्तविक जोड़ों को प्रजनन स्वायत्तता का प्रयोग करने से रोकने के लिए। हालांकि युग्मक की गुणवत्ता और आयु प्रासंगिक हो सकती है, लेकिन वे पूर्वव्यापी प्रवर्तन को उचित नहीं ठहराते, खासकर जब प्राकृतिक गर्भाधान या गोद लेने के लिए कोई समान आयु सीमा न हो। जिन दंपतियों ने अधिनियम से पहले सरोगेसी शुरू की थी वे आयु सीमा के बावजूद इसे जारी रख सकते हैं।
चलिए अब जानते हैं इस मामले में शामिल प्रावधानों के बारे में। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 इच्छुक माता पिता के लिए आयु सीमा निर्धारित करता है, वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है, केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। सरोगेसी विनियमन नियम 2022 क्लिनिकों के पंजीकरण, कर्मचारियों की योग्यता, बीमा कवरेज, सहमति प्रपत्र और सरोगेसी प्रयासों की सीमाओं को नियंत्रित करता है। सहायक प्रजनन तकनीक विनियमन अधिनियम 2021 ART क्लिनिक पर्यवेक्षण और सुरक्षित नैतिक प्रथाओं को विनियमित करता है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आयु सीमा और सरोगेसी के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, आयु सीमा से अधिक के जोड़े सरोगेसी जारी नहीं रख सकते हैं यदि अधिनियम से पहले भ्रूण फ्रीज कर दिए गए थे। ऑप्शन बी, सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत आयु सीमाएं पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होती हैं। ऑप्शन सी, सभी मामलों में ART बोर्ड की मंजूरी के बिना सरोगेसी आगे नहीं बढ़ सकती है। ऑप्शन डी, जोड़ों को नए अधिनियम के तहत सरोगेसी प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।